started with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum, I am Ahmad bin Yasir and I welcome you in the series of Punjab Curriculum and Textbook Board Lahore, which are based on Single National Curriculum 2022. General Science Grade 5. Lesson number 1, Classification of Living Organisms. Classification of living organisms mean हयातियात की दर्जा बंदी. Questions before reading. Can you classify organisms around you? क्या आप उन जो हयातियात आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं उनको आप तकसीम कर सकते हैं? ये आपका सेल्फ आंसर है. Let's move towards next question. Are the flowering plants different from each other? क्या जो फूल देने वाले यानी फूलों वाले पौधे हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं? Yes, flowering plants are different from each other. There are two types of flowering plants, monocot plants and dicot plants. Monocot plants are plants which contain one cotyledon and dicot plants are the plants whose seeds contain two cotyledons. Question number 3. Why is the protection of organism necessary for the existence of life? कि जो हयातियात हैं इनको इनकी जो हिफाजत है ये क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए? आंसर. Protection of organism is necessary because they provide healthy ecosystem which maintain the climate, recycle nutrients and provide us food, medicines and much more. ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें खाना, हमें दवाई वगैरह और बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं, etc. Now let's move towards reading. Classification of organisms. There are numerous types of organisms found on our earth. हमारी ज़मीन पे मुख्तलिफ़ किस्म के हयातियात पाए जाते हैं. These organisms are different from each other. ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. There are no similarities among them. इनमें कोई मुमासलत नहीं पाई जाती. Some have few similar characteristics. कुछ की जो खसूसियात हैं वो एक जैसी होती हैं. Activity 1.1. Write the names of organisms and their respective groups on the basis of similar characteristics. Gawa, fowl, pigeon, mango, sparrow, snake, rose, crocodile, sunflower, lizard, cat, tiger, cow, tortoise, goat and dove. For example, rose, fowl, snake and goat have been placed in separate groups. एक्टिविटी 1.1 में हमें यह दिया गया है, कुछ नाम दिए गए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, हयातियात दिए गए हैं. हमने इनको इनकी खसूसियात के मुताबिक किसी ग्रोह में डालना है. पहला देख लेते हैं ग्रोह. ग्रुप 1 रोज़. तो रोज़ के साथ मैच होता है मैंगो, गावा एंड सनफ्लावर. बस यही मैच होता है रोज़ के साथ और हमने इसको रोज़ के ग्रुप के साथ में डाल दिया क्योंकि ये सारे जो हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ग्रुप 2 फाउल. इसके साथ हम डालेंगे पिजन, डव, स्पैरो. इनको हमने इस ग्रुप 2 में इसलिए डाला है क्योंकि ये सारे बर्ड्स हैं. ग्रुप 3 स्नेक. स्नेक के साथ हम डालेंगे लिजर्ड, क्रोकोडाइल और टर्टल. हमने इनको ग्रुप 3 में इसलिए डाला है क्योंकि ये सारे रेप्टाइल्स हैं. ग्रुप 4
गोट, काउ, टाइगर, कैट। हमने इसको ग्रुप 4 में इससे डाला है क्योंकि ये सारे जो हैं ये एनिमल्स हैं। नीचे हमसे एक्टिविटी 1.1 के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाई डिड यू पुट रोज़ एंड मैंगो इन वन ग्रुप? आपने रोज़ एंड गुलाब और आम को एक ग्रुप में क्यों रखा? वाई डिड यू पुट फाउल एंड पिजन इन अनदर ग्रुप? आपने फाउल और पिजन ये दो बर्ड्स हैं, इनको एक ग्रुप में क्यों रखा? रोज़ और फ्लावर को मैं आपको बता चुका हूँ इसलिए एक ग्रुप में रखा बिकॉज दे आर फ्लावरिंग प्लांट, रोज़ एंड मैंगो। एंड फाउल और पिजन को हमने एक ग्रुप में इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों बर्ड्स हैं। You place organisms of similar characteristics in one group. For example, you made a group of flowering plants with mango, guava, rose, and sunflower. You made another group of organisms of other similar characteristics. For example, you made a group of fowl, pigeon, dove, and sparrow. All of these have same characteristics. You have separated organisms on the basis of similarities and differences. Thus you have classified the organisms. आपने इनको मुमासलत और इख्तलाफात के मुताबिक डिवाइड किया है इन तमाम चीज़ों को, तो इसीलिए हमने इनको क्लासिफाई किया है, हमने इनकी क्लासिफिकेशन की है। आगे हमें डेफिनेशन दी हुई है। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? टू पुट ऑर्गेनिज्म इनटू सेपरेट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हयातियात की उनकी मुमासलत और इख्तलाफात के मुताबिक की बुनियाद पर उन्हें एक ग्रुप में तकसीम करने को क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी दर्जाबंदी कहते हैं। डू यू नो, as a wall is built of bricks stuck together in the same manner, the body of organisms is built of cells stuck together. जैसा कि हम एक दीवार बनाते हैं ईंटों के साथ, जो ईंटों को जोड़कर हम एक दीवार बनाते हैं, इसी तरह हमारी हर जो हयातियात होता है उसकी जो जिस्म होता है वो सेल से बना होता है। Importance of classification. Due to classification, we can determine the similarities and differences among organisms due to the structure and other characteristics of organism. We can identify and study them. We can also know the relationship among organisms. क्लासिफिकेशन से हमें चीज़ों की मुमासलत और इख्तलाफात को हम ढूंढ सकते हैं। Due to the structure and other characteristics of organism, we can identify and study them. हम इनको पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनिज्म के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, मुमासलत और इख्तलाफात के दरमियान बुनियाद पर तकसीम किए गए होते हैं। Now, next topic is 5 kingdom system. The organisms have been divided into 5 kingdoms on the basis of similarities and differences. The name of these kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. अब क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर हमने किंगडम्स बनाई हुई हैं। हम यानी 5 किंगडम्स हैं क्लासिफिकेशन की बुनियाद पर, जिनके नाम हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। आगे हमने इनके बारे में बताया गया है। नंबर 1, मोनेरा। These organisms are made of one cell. ये एक सेल से बने होते हैं। Their structure is very simple. इनकी जो बनावट होती है ये बहुत सादा सी होती है। These include bacteria. इनमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। Bacteria are found everywhere on the earth. ये हर जगह ज़मीन पे पाए जाते हैं। Some bacteria can prepare their food. कुछ बैक्टीरिया हैं अपना खाना बना सकते हैं। Many bacteria obtain food from other organisms and dead bodies. ये बैक्टीरिया जो हैं ये मुख्तलिफ जानदार हयातियात से अपना खाना और उनकी जो लाशें हैं उनसे खाना अपना हासिल कर सकते हैं। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन एनिमल्स एंड प्लांट। कुछ जो होते हैं वो जानवरों और पौधों में बीमारी फैलाते हैं। नंबर 2, प्रोटिस्टा। मोस्ट ऑफ देम लिव इन वाटर। ये जो होते हैं ये पानी में रहते हैं। दिस किंगडम इंक्लूड्स अमोबिया,
पैरामीकियम एंड एल्जे। इनमें अमोबिया, पैरामीकियम और एल्जे आ जाते हैं। एग्जांपल्स स्पायरोगायरा। अमोबिया एंड पैरामीकियम आर मेड ऑफ वन सेल। अमोबिया और पैरामीकियम जो होते हैं ये एक सेल से बने होते हैं। एल्जे में कंसिस्ट ऑफ वन सेल एल्जे जो और मेनी सेल्स। ये एल्जे जो होता है ये कुछ एल्जे एक सेल से बने होते हैं और कुछ एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। एल्जे आर फाउंड इन रिवर्स, पाउंड्स एंड ओशियन। एल्जे दरियाओं, तालाबों और समंदरों में पाए जाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल होती है। नंबर 3, फंजाई। सम फंजाई आर मेड ऑफ वन सेल। कुछ फंजाई एक सेल से बने होते हैं। मेनी फंजाई मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। कुछ ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। सच फंजाई हैव फिलामेंट लाइक बॉडीज़। ऐसे जो फंजाई होते हैं उनकी लाइट बॉडीज़ होती हैं, यानी हल्की बॉडीज़ होती है, हल्के जिस्म के होते हैं। यानी वो फंजाई नीड मॉइस्चर्स फॉर ग्रोथ। इन्हें नमी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड। ये अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे लिव। ये वहाँ से अपना खाना जल्द करते हैं जिधर ये रहते हैं। यीस्ट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक फंजाई। यीस्ट एक फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। माइक्रोस्कोपिक फंजाई आर दोज फंजाई विच वी कैन सी विद माइक्रोस्कोप। ये ऐसे फंजाई होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी दीज फंजाई विद आवर नेक्ड आई। हम अपनी आँख से इनको नहीं देख सकते। राहिजोपस इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ये राहिजोपस का दूसरा नाम है ब्लैक ब्रेड मोल्ड। इट ग्रोज ऑन मॉइस्ट ब्रेड्स। ये नमी वाली जबरोटियों और फलों में उगता है। द मशरूम्स आर अम्ब्रेला लाइक। मशरूम जो होते हैं वो छतरी की तरह होते हैं। दे ग्रो ऑन पाइल्स ऑफ रोटन मैटर। ये खराब जो चीज़ें होती हैं उन पे निकलते होते हैं। डू यू नो सम मशरूम्स कैन बी ईटन बट सम मशरूम्स आर पॉइजनस। कुछ मशरूम खाए भी जाते हैं और लेकिन कुछ जहरीले होते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ मशरूम्स हैव द एबिलिटी टू ग्लो लाइक फायरफ्लाइज एट नाइट। यानी 100 से ज़्यादा किस्में जो मशरूम्स की हैं उनके पास ये खासियत होती है कि वो चमक सकें जुगनों की तरह रात के वक्त। नंबर 4, प्लांटे। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल। ये एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड प्लांट्स। ये प्लांट्स कहलाते हैं। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर लीव्स। इनके पत्तों में क्लोरोफिल होती है। सो दे आर एबल टू मेक देयर फूड बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन, जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी की वजह से ये अपना खाना बना सकते हैं। ड्यू टू क्लोरोफिल देयर लीव्स आर ग्रीन इन कलर। क्लोरोफिल की वजह से इनके जो पत्ते होते हैं वो सब्ज होते हैं। नंबर 5, एनिमिलिया। दीज ऑर्गेनिज्म आर आल्सो मेड ऑफ मेनी सेल्स। ये एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। दे आर कॉल्ड एन एनिमल्स। ये एनिमल्स कहलाते हैं, जानवर कहलाते हैं। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती। सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड, जिसकी वजह से अपना खाना नहीं बना सकते। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉन्डर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पाज ऑफ हैन एंड डक। यानी जो मुर्गी और बतख के पंजों में क्या फ़र्क होता है। डक हैज़ वेब्ड फीट एंड हैन हैज़ नॉर्मल क्लॉ लाइक फीट। डक के पास ऐसे फीट्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम कर सकती है, लेकिन हन के पास ऐसे फीट्स नहीं होते, उसके पास सिंपल फीट्स होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।